ڈی پی او وہاڑی محمد عیسیٰ خان کے خصوصی ٹاسک پر ایس ایچ او تھانہ گڑھا موڑ کی بڑی کارروائی، انسانی اسمگلر گروہ کے رکن کو گرفتار کر لیا۔ ملزم ممتاز رائے یونان کشتی حادثے میں ملوث ہے، مزید تفتیش کے لیے ایف آئی اے کے حوالے۔ غوثپور میں عوام کے محافظ ہی غیر محفوظ، ذرائع تہائی حدود میں ڈاکو کا پولیس پر حملہ، 3 اہلکاروں کو اغوا کر لیا۔ ڈاکو اہلکاروں کا اسلحہ بھی ساتھ لے گئے، 2 گھنٹے بعد ڈاکو نے اہلکاروں کی ویڈیو وائرل کر دی۔ اکاڑا کے نواحی علاقے حجرات شاہ مقیم میں مبینہ پولیس مقابلہ، 2 ڈاکو مارے گئے، 3 ملزمان فرار۔ پولیس اسامہ عرف کالی کو نشاندہی کے لیے لے جا رہی تھی کہ کھرل کلاں کے قریب ملزم کے ساتھیوں نے پولیس ٹیم پر حملہ کر دیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں اسامہ عرف کالی اور اس کا ساتھی مارا گیا۔ خون سفید ہو گیا، ہارون آباد میں سگے بیٹے نے باپ کی جان لے لی۔ نواحی گاؤں 45-3R میں قمر الزمان نے عبدالرزاق کو کلہاڑی سے حملہ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے شروع کر دیے۔ قیامت خیز گرمی، سائے کا انتظام ہے نہ ہی پانی کا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کوٹچٹھا سینٹر پر خاتون بے ہوش ہو گئی، خاتون کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سیالکوٹ میں تھانہ صدر کے علاقے میں مبینہ پولیس مقابلہ، 1 ڈاکو مارا گیا، پولیس نے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ڈاکو سیالکوٹ ڈسکا روڈ سدرا بدرا کے علاقے میں 2 پیٹرول پمپوں پر واردات کے بعد فرار ہو رہے تھے۔ ہلاک ڈاکو کی شناخت عباس عرف نانی ڈون کے نام سے ہو گئی، ملزم قتل سمیت متعدد مقدمات میں ریکارڈ یافتہ تھا۔ قصور کے نواحی گاؤں ٹبا کے قریب ڈاکوؤں کی فائرنگ، نوجوان شدید زخمی نوجوان کی شناخت ذیشان کے نام سے ہوئی۔ ذیشان سے ڈاکو نقدی موبائل فون چھین کر فرار ہو رہے تھے، زخمی نوجوان کو ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کشمور میں پاک فورس سے اظہاری یکجہتی کے لیے قومی امن کمیٹی کی ریلی، شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ملک کے دفاع اور دہشت گردوں کے خاتمے اور ملک کی سلامتی کے لیے پاک فوج نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ سازش کے تحت پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ رہنما قومی امن کمیٹی کا خطاب، کہا عوام پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہیں اور آخری دم تک کھڑے رہیں گے۔ اور بخشا پور میں تھانہ گبلو پولیس کا انوکھا کارنامہ، 12 سالہ بچے کو پولیس مقابلہ دکھا کر قتل کرا دیا۔ قتل ہونے والا میر خان بنگوار 7ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں احمد بلال منچ اور میں ہوں اقصیٰ خان۔
हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। बुलेटिन में खुशामदीद। आपको ब्रेकिंग न्यूज दें कि गौसपुर में अवाम के मुहाफिज ही गैर मुहाफिज दौरानी तहाई हदूद में डाकू ने पुलिस पकड़ पर हमला करके 3 अहलकारों को अगवा कर लिया है। डाकू अहलकार का असलहा भी साथ ले गए हैं। बताया जा रहा है कि डाकू मखमी को लेकर कच्चे की तरफ फरार हो गए। 2 घंटे बाद डाकू ने अहलकारों को यरगमाल बनाकर वीडियो वायरल कर दी। जी बिल्कुल, इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं परवेज अहमद सोमरू गौसपुर से। जी परवेज, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस हवाले से। गौसपुर के करीब दुरानी मर थाने के हदूद में डाकुओं ने पुलिस पिकअप पर हमला कर दिया। हमले के दौरान 3 पुलिस एहलकारों को अगवा करके कच्चे तरफ फरार हो गए। मुगयों में लियाक भुट्टो, मीर हजार निदवानी और लियाकत शामिल है। 2 घंटे बाद डाकुओं ने मुगवियों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया परवेज तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब मेलसी के सपूत का एजाज डॉक्टर दानिश शबीर भट्ट ने MBBS के लिए क्वालिफाई कर लिया। MBBS का इम्तिहान नुमाया नंबरों से पास करने पर डॉक्टर हुजैफा जिब्रान, तारिक सलीम, डॉक्टर हसनैन शौकत, डॉक्टर सनाउल्लाह, डॉक्टर कामरान, डॉक्टर अहमद रजा समेत दीगर ने मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। डॉक्टर दानिश शबीर भट्ट का कहना था कि बहुत जल्द पाकिस्तान वापस पहुंचकर मुल्क और अवाम की भरपूर खिदमत करेंगे। चूनिया में ज़राई अद्वियात डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी है। डीलर्स ने दुकानें बंद करके एहतजाज किया। कहा महकमा ज़राअत के अलावा और किसी एजेंसी के हाथों ब्लैक मेलिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे। पेस्टिसाइड डीलर्स ने कहा कि महकमा ज़राअत की 2 ब्रांचें हमें पहले ही चेक कर रही हैं। इसके अलावा 5 मजीद एजेंसियां हमारे पीछे लगा दी गई हैं, जो सरासर ज़्यादती है। हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत और इंतज़ामिया ने अगर हमारे मुतालबात मंजूर ना किए तो हम अपना अगला लाहे अमल बनाएंगे। मजीद जानेंगे यावर असदी की रिपोर्ट में। आपको बताते चले इस हवाले से कि चूनिया में ज़राई अद्वियात डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी है। डीलर्स ने दुकानें बंद करके एहतजाज किया। कहा महकमा ज़राअत के अलावा और किसी एजेंसी के हाथों ब्लैक मेलिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे। पेस्टिसाइड डीलर्स ने कहा कि महकमा ज़राअत की 2 ब्रांचें हैं, पहले ही चेक कर रही हैं। इसके अलावा 5 मजीद एजेंसियां हमारे पीछे लगा दी गई हैं। चेयरमैन टाउन कमेटी जुल्फिकार अली खास खेली, वाइस चेयरमैन नोल रॉय महेश्वरी ने हल्फ उठा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने चेयरमैन वाइस चेयरमैन से हल्फ लिया। जुल्फिकार अली खास खेली ने कहा पीपल्स पार्टी गरीबों की पार्टी है। पार्टी में अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं है। पीपल्स पार्टी में सबके लिए इज्जत है। वाइस चेयरमैन महेश्वरी ने कहा पीपल्स पार्टी ने हमेशा अक़लियत को इज्जत दी है। हल्फ बर्दारी तकरीब में साबिका चेयरमैन M रफीक, मौलवी गुलाम मुस्तफ़ा साबरी, हाजी माही खान, अली डोनू कोलाची, ज़ेब बंगाली, अली मोहम्मद शेदी और डॉक्टर M लाल ने शिरकत की। कराची में थाना कोरंगी पुलिस की कार्रवाई। स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलविस गैंग का मास्टरमाइंड पकड़ा गया। मुलजिम से असलहा और छीने के मोबाइल बरामद कर लिए गए। मजीद जानते हैं नूर अमीन की रिपोर्ट में।
जानिब से तकनीकी बुनियाद पर कार्रवाई की गई। स्ट्रेट क्राइम के बेशतर वारदातों में मतलूब गैंग का मास्टर माइंड मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। गैंग मास्टर माइंड मुलजिम आबिद कराची में 25 वारदातों में मुलविस निकला। मुलजिम ने 13 अप्रैल को कोरंगी में साथियों के हमरा क्लिनिक पर डकैती की वारदात की थी। मुसल्लम मुलजिमान की सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। मुलजिमान ने क्लिनिक में मौजूद मरीज और अमले से मोबाइल छीने थे। मुलजिम आबिद को लांडी टेक्निकली टीम डिजिटल इंटेलिजेंस सेल के इंफॉर्मेशन पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिम से असला, एक पिस्तौल और छीने हुए 3 मोबाइल फोन बरामद हुए। दीगर फरारी मुलजिमान की तलाश जारी है। गिरफ्तार मुलजिम का साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हासिल किया जा रहा है। एसएसपी तारिक नवाज ने कहा कि गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। नूर अमीन मसूद, कोय नूर, कराची। खबर शामिल करेंगे आरिफ वाला से, जहां महकमा लाइफ स्टॉक के वेटरनरी ऑफिसर डॉक्टर सैयद अली अमार की टीम ने छापा मारकर 10 मन मुजरे सेहत गोश्त बरामद कर लिया। एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। 3 कसाब फरार होने में कामयाब हो गए। थाना सिटी ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। मजीद जानेंगे वेटरनरी रज़ा ऑफिसर से। रज़ा बताइएगा। डॉक्टर सैयद अली अम्मार ने अपनी टीम के हमरा खुफिया अदारों की इतला पर मोहल्ला मुश्ताक नगर में छापे के दौरान एक पिकअप को रोक कर चेक किया तो इसमें से बीमार मुर्दा भैंस का 10 मन मुजरे सेहत गोश्त मौजूद था, जो कि मुलजमान साहिवाल और लाहौर सप्लाई कर रहे थे। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मुलजिम रमजान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि शानी, गुलजेब और नौरेज मौके से फरार हो गए। मुलजमान के खिलाफ थाना सिटी आरिफवाला में स्लाइटर कंट्रोल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। रजा जैदी, टीवी। करतारपुर राहदारी ने बीमार बाप की बेटी से मिलने की ख्वाहिश को पूरा कर दिया। फैसलाबाद का सुलेमान गिल भारत में ब्याही सोनिया से 6 साल से मिलने को तरस रहा था। सुलेमान गिल एम्बुलेंस में बेटी से मिलने करतारपुर पहुंचा। सोनिया मसीह ने कहा कि 6 साल से वालिद से मिलने के लिए तड़प रही थी। करतारपुर इंतजामिया और पाकिस्तान का शुक्रिया, हमें मिलने की इजाज़त दी। आपको बताते चलें इस हवाले से कि करतारपुर राहदारी ने बीमार बाप की बेटी से मिलने की ख्वाहिश पूरी कर दी। फैसलाबाद का सलेमान गिल भारत में ब्याही सोनिया से 6 साल से मिलने को तरस रहा था। सलेमान गिल एम्बुलेंस में बेटी से मिलने को करतारपुर पहुंचा। सोनिया मसीह ने कहा कि 6 साल से वालिद से मिलने के लिए तड़प रही थी। करतारपुर इंतजामिया और पाकिस्तान का शुक्रिया, हमें मिलने की इजाज़त दी। हुजरा शाह मुकीम में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 2 डाकू मारे गए, जबकि 3 डाकू फरार हो गए। पुलिस उसामा उर्फ काली को साथी मुलजिम की निशानदेही के लिए ले जा रही थी कि खरल कलां के करीब मुलजिम के साथियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। फायरिंग के तबादले में उसामा उर्फ काली और इसका साथी मारा गया। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपको आगाह करें कि हुजरा शाह मुकीम में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 2 डाकू मारे गए, जबकि 3 डाकू फरार। पुलिस उसामा उर्फ काली को साथी मुलजिम की निशानदेही के लिए लेकर जा रही थी कि खरल कलां के करीब मुलजिम के साथियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। फायरिंग के तबादले में उसामा उर्फ काली और उसका साथी मारा गया। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। अवामी शिकायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सफ्तराबाद ईशा जफर ने बाजारों में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया। तमाम बाजारों से तजावुजात खत्म करवा दी। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर का तजावुजात के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन करने पर शुक्रिया अदा किया। ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए बाजारों से दुकानों के आगे रखा हुआ सामान कब्जे में लेकर। मजीद जानते हैं महर सरफराज की इस रिपोर्ट में। खानका डोगरा में तजावजात की भरमार ने आम आदमी का जीना दोबर कर रखा था। खसूसन बुजुर्ग और खवातीन का गुजरना बहुत मुश्किल हो चुका था। अवामी शिकायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद यूशा जफर ने मशीनरी और अमले के हमरा ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए सारों बाजारों से दुकानों के आगे रखा हुआ सामान अपने कब्जे में ले लिया। यूशा जफर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर सामान रखेंगे, लोगों के लिए दुश्वारी पैदा करेंगे, उनके खिलाफ हर सूरत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो हमारे ये लोकल रेजिडेंट्स हैं, उनकी कंप्लेंट्स पे हमें 12 कंप्लेंट्स आ रही थी और हमने इस सिलसिले में फिर ये आज एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव की है
इस सिलसिले में हमारे जो SOP से हमने कुछ लोगों को जो कि थोड़े से अपनी हदबंदी से आगे थे उनको वार्निंग्स इशू किए, लेकिन जो बहुत ही ड्रास्टिकली कर रहे थे इंक्रोचमेंट स्टेट लैंड को, उनका हमने जो भी सामान था वो कब्जे में ले लिया। और कुछ लोग थे जो देवर रिलक्टेंट थे, उनको जो फाइन किया जाए तो फिर हमने उनको भारी जुर्माने कर दिए वर्थ ऑफ 20,000 इवन। जबकि शहरियों ने तजावजात के खिलाफ बिना तफरीक ऑपरेशन करने पर असिस्टेंट कमिश्नर की काविशों को सराहा। कैमरामैन मोहम्मद अजमल के साथ मैर सरफराज। नाज़रीन वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन आपको बताएं कि एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट सरगोदा ने छापा मारकर बिल्डिंग डिपार्टमेंट भक्खर के क्लर्क को 25,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट के सर्कल ऑफिसर अमीर अब्दुल्ला ने सिविल जज फयाज अहमद साजरा की निगरानी में छापा मारकर मुलजिम मेहरबान अली से 25,000 रुपये बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम ने बिल पास करने के एवज मुश्ताक हुसैन से 25,000 रुपये वसूल किए। रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन अब्दुल रज़ाक टोकर ने कहा कि सरगोदा डिवीजन को माली बदअनवानी से पाक करके दम लूंगा। खबर शामिल करेंगे लकी मरवत से, जहां आवारा कुत्तों की भरमार होने से मुकीम परेशान हो गए हैं। तिजोरी में 7 साल बच्ची पर हमला करके शदीद जख्मी कर दिया गया। मुख्तलिफ इलाकों में कई अफराद आवारा कुत्तों का शिकार हो चुके हैं। DHQ अस्पताल समेत कहीं भी वैक्सीन दस्तयाब नहीं है। DHO डॉक्टर अब्दुल गुल ने कहा, वैक्सीन कई महीनों से खत्म है, दस्तयाबी को मुमकिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत बजट की कमी जाहिर कर रही है। वैक्सीन समेत दीगर जान बचाने वाली अदवायात भी ख़त्म है। म्यूनसिपल कमेटी के मेंबर अफनान अली ने कहा, आवारा कुत्तों को मारने की जिम्मेदारी अदारे की है, लेकिन जहर हमारे पास दस्तयाब नहीं है। जी बिल्कुल, आपको आगाह करते चलें कि लकी मरवत में आवारा कुत्तों की भरमार होने से मुकीम परेशान होने लगे। तजोड़ी में 7 साल बच्ची पर हमला करके शदीद जख्मी कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में कई अफराद आवारा कुत्तों का शिकार हो चुके हैं। DHQ अस्पताल समेत कहीं भी वैक्सीन दस्तयाब नहीं। DHO डॉक्टर अब्दुल गुल ने कहा, वैक्सीन कई महीनों से ख़त्म है, दस्तयाबी को मुमकिन बनाने की कोशिश में लगे हैं। सूबाई हुकूमत बजट की कमी जाहिर कर रही है। वैक्सीन समेत दीगर जान बचाने वाली अदवायात भी ख़त्म है। और दूसरी जानिब गाजी थाना सराय सालेह पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए चंगी बांडी कत्ल केस में मुलविस मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। DPO हरिपुर उमर खान ने कत्ल की वारदात का नोटिस लेकर DSP सर्कल हेडक्वार्टर्स को गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। गिरफ्तार मुलजिमान में एहसन, शुएब, साद और दाइम अली सगीर हुसैन शामिल हैं। मुलजिम उमर अबूरी जमानत पर है। खून सफेद हो गया। हारूनाबाद में सगे बेटे ने बाप की जान ले ली। दवाही गांव 45-3R में कमरुज़्ज़मान ने अब्दुल रज़ाक को कुल्हाड़ी से हमला करके मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए हैं। आपको बताएं कि हारूनाबाद में सगे बेटे ने बाप की जान ले ली। नवाही गांव 45-3R में कमरुज़्ज़मान ने अब्दुल रज़ाक को कुल्हाड़ी के वार से मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए हैं। नारंग मंडी के 100 सरहदी देहात को जाने वाली वाहिद कोट भेला हेडवर्क्स रोड टूट फूट का शिकार है। सड़क की खस्ता हाली के बायस हादसात और वारदातें मामूल बनने लगी। अवाम का सरापा एहतजाज रहना भी मामूल है। मजीद जानते हैं कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। नारमंडी के सरहदी इलाका को जाने वाली वाहिद कोट बैरा हेडवर्क्स रोड बरसहा बरस से मुकम्मल टूट फूट का शिकार है। सफ़र करना इंतहाई दुश्वार गुजार हो चुका है। मज़कूरा रोड नारमंडी के 100 से ज़ायद सरहदी देहात की वाहिद गुजरगाह है। रोज़ाना सरहदी इलाका से हज़ारों लोग और तलबा तालबा शहर आते और जाते हैं।
रोड मुकम्मल नकारा होने की वजह से सफ़र करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। हादसात और डकैती में भी इजाफा हो चुका है। ये इज्तिमाई मसला है जो अरकान असम्बली को नज़र नहीं आ रहा। आइए सुनते हैं मुतासिर की ज़बानी। जी ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਸਾਲ ਹੋਏ ਬਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੱਡੇ ਨੇ ਰਕਸ਼ੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖਰਾਬ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੌਕਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਖੱਡਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਬਣਾਉਣ, ਪਰ ਅਗਰ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੋਈ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤੋੜ ਮਾ ਪੱਸੀ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਗਾਂ ਅਗਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਮੀਰੋਵਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸੇ ਟੁੱਟੀ ਸਾਡੀ। ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਹੈ ਜੇਤੋਗਾਲਾ ਭੈਲਾਕੋਟ ਰੋਡ, ਤਕਰੀਬਨ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਬਣਿਆ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਖੱਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਰਕਸ਼ੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜੋ ਕਰੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ गम्बट के सहाफ़ी शायर अदीब अदरीस अब्बासी को पिछले 1 साल बीत गया, ताहल हुकूमत की जानिब से मरहूम के लवाहिकीन की कोई इमदाद न हो सकी। सहाफ़ी अदरीस अब्बासी की पहली बरसी गम्बट के निजी स्कूल में मनाई गई। सहाफ़ियों, शोरा, अदीबों और शहरियों की शिरकत की। शुरका ने कहा कि अदरीस अब्बासी ईमानदार, बेहतरीन सहाफ़ी भी थे जिन्होंने अपने कलम से शहरियों के मसाइल को उजागर किया। नौजवानों की रहनुमाई के लिए 2 किताबें भी लिखी। हुकूमत लवाहिकीन की मदद, बच्चों की तालीम मुफ्त करे, शुरका का हुकूमत से मुतालबा। गम्बट के सहाफ़ी शायर अदीब अदरीस अब्बासी को पिछले 1 साल बीत गया, ताहाल हुकूमत की जानिब से मरहूम के लवाहिकीन की कोई इमदाद ना हो सकी। सहाफ़ी अदरीस अब्बासी की पहली बरसी गम्बट के निजी स्कूल में मनाई गई। सहाफ़ियों, शोरा, अदीबों और शहरियों की शिरकत। शुरका ने कहा कि अदरीस अब्बासी ईमानदार, बेहतरीन सहाफ़ी भी थे जिन्होंने अपने कलम से शहरियों के मसाइल को उजागर किया। कयामत खेज गर्मी साए का इंतजाम है, ना पानी का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कोटचट्ठा सेंटर पर खातून बेहोश हो गई। खातून को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद जानेंगे अंजुम अहमदानी की रिपोर्ट में। जी, मुल्क भर की तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत चलने वाली रकूम का सेंटर बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल कोटचट्ठा में बनाया गया है। यहाँ पर बेहतर इंतजामात न होने की वजह से खवातीन शदीद गर्मी और शदीद धूप में बेहोश होने लगी हैं। इस शदीद गर्मी में ना साए का इंतजाम किया गया और ना ही पीने के साफ पानी का इंतजाम किया गया है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अफसरान फोटो सेशन करने के लिए सिर्फ 5 मिनट की हाजिरी लगा कर चले जाते हैं। आज भी एक बुजुर्ग खातून शदीद गर्मी की वजह से बेहोश हो गया, जिसको अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। की तादाद में खवातीन का एक ही सेंटर में आना किसी जिला से कम नहीं है। हालांकि माजी में तहसील कोटचट्ठा में 7 से 8 सेंटर बनाए जाते थे, लेकिन इस बार सिर्फ 3 सेंटर बनाए गए हैं। रिटेलर्स का कहना है कि शदीद गर्मी में खवातीन के हजूम में हमारे लिए भी शदीद परेशानी हो रही है। सेंटर पर कोई तरतीब भी नहीं है। दूसरी जानिब खवातीन का कहना है कि महकमा की तरफ से कोई बेहतर इंतजाम नहीं किए गए हैं। यहाँ तक कि पीने के पानी का इंतजाम भी नहीं किया गया और न ही इंतजार में बैठने के लिए कोई जगह फराहम की गई है। इससे बेहतर है कि हुकूमत ये रकम न देती। हजूम की वजह से हमारे पर्दे तक खत्म हो गए हैं, हमारी शदीद तजलील की जा रही है। उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चेयरपर्सन शाज़िया मरी से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के साथ नज़ीर अंजुम अहमदानी को नूर न्यूज़ कोटचट्ठा। मटियारी की टाउन कमेटी पर GDA की वाहिद नौमुंतखब चेयरमैन सैयद हसन मुर्तज़ा हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत के लिए अवामी रैली के साथ टाउन कमेटी मटियारी पहुंची। शहरियों का ढोल के थाप पर रस, फूल भी निशावर किए। मजीद जानेंगे अली फैजान की रिपोर्ट में। मटियारी जिले के हेडक्वार्टर शहर के टाउन कमेटी पर GDA के कामयाब होने वाले वाहिद चेयरमैन सैयद हसन मुर्तज़ा शाह जामोद और वाइस चेयरमैन सैयद मीर काजिम शाह हुसैनी अपने ओहदे का हलफ लेने के बाद बड़ी अवामी रैली के हमरा ढोल की थाप पर टाउन कमेटी मटियारी पहुंचे तो शहरियों ने उनका जगह जगह पर
फूलों की पत्तियां निछावर करके भरपूर इस्तकबाल किया गया। टाउन कमेटी मटियारी में अपनी चार्ज लेने के बाद नौ मुंतखब चेयरमैन सैयद हसन मुर्तजा शाह जामोद का कहना था कि अवाम के वोट से मुंतखब हुआ हूं तो अवाम की खिदमत करूंगा। उनका कहना था कि मटियारी शहर इस वक्त सबसे बड़ा मसला पीने का पानी है, उसके अलावा ड्रेनेज और सफाई भी अहम मसाइल में शामिल हैं। मसाइल से बखूबी वाकिफ हूँ, मगर अब भी इन मसाइल से जान चढ़वाने का वक्त आ गया है। अब हमें मिलकर इन तमाम मसाइल का हल निकालना होगा। इनका कहना था कि मेरे वालिद सैयद जलाल शाह जामोद ने भी हमेशा मटियारी के अवाम की बेलौस खिदमत की है। अब हम मिलकर मटियारी को एक मिसाली शहर बनाएंगे। वायदा नहीं करता हूँ कि मैं कोई यहाँ के यूरोप का कोई शहर कर दूंगा, इतना इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि टाउन कमेटी को इंशाल्लाह कराची का किसी न किसी टाउन से इसकी मुसाफिर जरूर। वादा तो नहीं करता, मगर टाउन कमेटी मटियारी को कराची के एक मिसाली टाउन जैसा जरूर बनाऊंगा। कैमरामैन सलमान अली के साथ। पत्तोकी में डाकू बेलगाम हो गए। बढ़ती हुई वारदातों से शहरी और ताजिर बरादरी खौफ के आलम में मुब्तला। कॉलेज रोड पर राइस डीलर्स ने डाकू ने 2.5 लाख नकदी लूट ली। सीसीटीवी फुटेज मंजरेआम पर आ गई। शहरियों ने ताजिर बरादरी, आरपीओ शेखपुरा और आईजी पंजाब ने नोटिस लेने का मुतालबा किया है। आपको बताते चलें इस हवाले से कि पत्तोकी में डाकू बेलगाम हो गए। बढ़ती हुई वारदातों से शहरी और ताजिर बरादरी खौफ के आलम में मुब्तला हैं। कॉलेज रोड पर राइस डीलर से डाकुओं ने 2.5 लाख नकदी लूट ली। सीसीटीवी फुटेज मंजरेआम पर आ गई। शहरी और ताजिर बरादरी ने आरपीओ शेखपुरा और आईजी पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया। कसूर के नवाही गांव में डाकुओं ने फायरिंग से नौजवान शदीद जख्मी हो गया। जख्मी नौजवान की शिनाख्त ज़ीशान के नाम से हो गई। पुलिस के मुताबिक ज़ीशान से डाकू नकदी, मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। जख्मी नौजवान को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कसूर के नवाही गांव टिब्बा के करीब डाकुओं की फायरिंग से नौजवान शदीद जख्मी हो गया। जख्मी नौजवान की शनाख्त ज़ीशान के नाम से हो गई। पुलिस के मुताबिक ज़ीशान से डाकू नकदी, मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। जख्मी नौजवान को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन को वज़ीर आज़म का कोऑर्डिनेटर बनाने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आज़म की तरफ से आज नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान है। बतौर मुआविन ख़ुसूसी ख्वाजा अहमद हसन वफाकी हुकूमत के जारी तरक्याती मनसूबों की निगरानी करेंगे। ख्वाजा अहमद हसन गुज़श्ता अदवार में भी अहम तरीन मनसूबों को पाया तकमील तक पहुँचाने में कामयाब रहे हैं। ख्वाजा अहमद हसन ने मेट्रो ट्रेन और मेट्रो बस अथॉरिटी और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जैसे कई मंसूबे पाया तकमील तक पहुँचाए हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी इन एक्शन हो गई है। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी नादिया साकिब अचानक सोशल सिक्योरिटी अस्पताल शाहदरा पहुंच गई। अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का भी मुआयना किया। बिल्कुल आपको आगाह करें कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हदायत पर कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी इन एक्शन कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी नादिया साकिब अचानक सोशल सिक्योरिटी अस्पताल शाहदरा पहुंच गई। अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना भी किया। आपको बताते चले इस हवाले से कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी इन एक्शन हो गई हैं। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी नादिया साकिब अचानक सोशल सिक्योरिटी अस्पताल शाहदरा पहुंच गई। अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का भी मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी इन एक्शन। मजीद इस हवाले से जानेंगे सलमान शाह से। जी सलमान, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी की हिदायत पर कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी इन एक्शन है। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी नादिया साकिब अचानक सोशल सिक्योरिटी अस्पताल शाहदरा पहुंच गई। कमिश्नर ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात, एमरजेंसी लैब, सेंटर मेडिकल स्टोर, सफाई सुथराई, डॉक्टर्स व अमला की हाजिरी को चेक किया। कमिश्नर ने अस्पताल में कायम डायलिसिस सेंटर का
खसूसी तौर पर जायजा लिया। MS अस्पताल ने कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी को डायलिसिस सेंटर व दीगर शोबाजात बारे ब्रीफिंग दी। एक डायलिसिस मशीन की खराबी पर कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी ने सख्ती से नोटिस लिया और MS अस्पताल को फौरी तौर पर मशीन को ठीक करवाने के अहकाम जारी किए। जी बहुत शुक्रिया सलमान तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के असासा ने यूनिवर्सिटी गेट के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। यूनिवर्सिटी का थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए। एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन ने मुतालबा कर दिया। बताया जाए 4 साल से असासा के GP पेंशन समेत दीगर फंड्स के हेड में रखे गए हैं और कहां खर्च किए गए। उसातिज़ा के स्पेशल ड्यूटी चार्जेस, पेपर चेकिंग चार्जेस और दीगर वाजिबुल अदात फंड्स को फौरी तौर पर रिलीज किया जाए। एसोसिएशन के अकाउंट को बहाल, रकम भी वापस दी जाए। गवर्नर पंजाब फौरी तौर पर नोटिस ले, मुजाहिरीन की अपील। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, ईद कुर्बान करीब आता ही टंडोजाम में मवेशी मंडी सज गई। खूबसूरत कुर्बानी के बैल बकरे मवेशी मंडी की रौनक को दोबारा करने लगे। महंगाई की शरह में इजाफे की वजह से खरीदार कम दिखाई देते हैं। व्यापारी जानवरों को कराची, हैदराबाद और मुख्तलिफ शहरों की मवेशी मंडी में फरोख्त करने पर मजबूर हैं। खबर शामिल करेंगे ओकाड़ा से, जहां शहर और गिरदोनवा में डकैतियों का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। GD रोड पर डाकुओं ने मिठाई की दुकान पर धावा बोल दिया। जैद से 30,000 नकदी, मोबाइल फोन और दीगर सामान लूट कर फरार हो गए। डकैती की CCTV फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। ओकाड़ा में बढ़ती हुई वारदातों पर शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। मुतासरा शहरी ने IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। सियालकोट में थाना सदर के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू मारा गया। पुलिस ने 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। सियालकोट डस्का रोड सिदरा बदरा के इलाके में 2 पेट्रोल पंपों पर वारदातों की इतला पर पुलिस ने फौरी एक्शन लिया। मुलजिमान वारदातें करके फरार हो रहे थे कि रहमताबाद में अहलकारों से सामना हो गया। हलाक डाकू की शनाख्त अब्बास उर्फ नानी डॉन के नाम से हो गई। मुलजिम कत्ल समेत मुतादिद मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता था। पुलिस की डाकुओं के साथ मुठभेड़, पुलिस को इंतहाई मतलूब एक डाकू हला, 4 को गिरफ्तार कर लिया गया। हरिपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सेक्रेटेरिएट में दिबाग और वेलफेयर के ताउन से फ्री आई कैंप लगाया गया। कैंप डॉक्टर चंद मुबारक हजारवी की जेर निगरानी मुनक्किद हुआ। इफ्तिताह साख चैम्बर के एग्जीक्यूटिव मेंबर सैयद सफदर जमान शाह ने किया। कैंप में सैकड़ों मरीजों ने आंखों का मुआयना करवाया और फ्री NK और अद्वियात भी फराहम की गई। मज़ीद जानेंगे राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। हरिपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की डेवलपमेंट सोशल वेलफेयर इस्लामिक कमेटी के ज़ेर इंतजाम शेख दिबाग अहमद वेलफेयर ट्रस्ट के ताउन से फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। फ्री आई कैंप में लाहौर के गंगा राम अस्पताल के डॉक्टर यासिर रशीद और मरूफ एनफसाद आमिर भट्ट ने अपनी टीम के हमरा हरिपुर और मुजफ्फरपुर इलाकों के अलावा दूर दराज से आने वाले सैकड़ों मरीजों मर्द व खतीन का आंखों का मुआयना, मुफ्त अद्वियात और NK फराहम की। जिसके गुर्दे में पथरी हो तो उस पथरी के लिए भी ये फ्री में दवाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो डॉक्टर हजरात बैठे तो अगर किसी को गुर्दे की पथरी की दवाई की जरूरत हो तो वो पहले मुझसे जुदा में मतलब राब्ता कर ले। ठीक है जी। इस महंगाई के दौर ये जरा इवेंट इन्होंने मुनक्कद किया है और अल्लाह ते यकीन करो ये आम डॉक्टर को भी तुसी चलो और जिस तरह ये ऐनकां दे रहे ने, ड्राप्स दे रहे ने, चश्मे इस तरह ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ये घट तो घट 5,000 रुपया फी आदमी का खर्चा है। पूरे शहर में या इधर जितने भी गांव, जितने इलाके भी हैं, यहाँ पे कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो। और ये पहले भी इन्होंने एक दफ़ा इधर लगाया है कैंप और उसमें भी तकरीबन 800-900 लोग मुस्तफीद हुए हैं। गरीब गुरबा लोगों के लिए बहुत बेहतर है। दूर दराज से भी यहाँ लोग आए हुए हैं, मेरी तरह के दूर दराज कस्मों से, और यहाँ मतलब आंखों का भी मुफ्त मुआयना किया जा रहा है। और कबल अजी कैंप का इफ्तिताह मुमताज कारोबारी शख्सियत सैयद सफदर जमान ने किया। इस मौका पर मोहम्मद सलीम अवान, कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर चंद मुबारक हजारवी, उमर खालिद, प्रेस क्लब के सीनियर नायब सदर मुशर्रफ हजारवी, नईम आबद और दीगर भी मौजूद थे। डॉक्टर चंद मुबारक हजारवी ने दिबाग वेलफेयर ट्रस्ट की खिदमत पर तफसीली रोशनी डाली।
राशिद महमूद, कोहिनूर न्यूज़। कश्मीर में पाक फौज की हिमायत में कौमी अमन कमेटी की जानिब से पाकिस्तान हाउस से डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। कौमी अमन कमेटी के रहनुमाओं समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कौमी अमन कमेटी के रहनुमाओं रहमतुल्लाह चन्ना, अली अकबर भीयू, ईमानुल्लाह चन्ना, टीपू रिंद, इकबाल मलिक ने कहा, मुल्क के दिफा और दहशत गर्दों के खात्मे और मुल्क की सलामती के लिए पाक फौज ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। साजिश के तहत पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अवाम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है और आखिरी दम तक खड़े रहेंगे। मजीद जानेंगे गुलाम मुर्तजा मेजारी से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, एक बार फिर अपडेट करते हैं। कश्मीर में पाक फौज की हिमायत में कौमी अमन कमेटी की जानिब से पाकिस्तान हाउस से डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। कौमी अमन कमेटी के रहनुमाओं समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कौमी अमन कमेटी के रहनुमाओं रहमतुल्लाह चन्ना, अली अकबर भीयू, ईमानुल्लाह चन्ना, टीपू रिंद, इकबाल मलिक ने कहा, मुल्क के दिफा और दहशत गर्दों के खात्मे और मुल्क की सलामती के लिए पाक फौज ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। डीपीओ विहाड़ी मोहम्मद ईसा खान के खसूसी टास्क पर एसएचओ थाना गड़ामोड़ की बड़ी कार्रवाई। इंसानी स्मगलर गिरोह के रुकन को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम मुमताज अराई यूनान कश्ती हादसे में मुलविस है। मुलजिम को मजीद तफ्तीश के लिए FIA के हवाले कर दिया गया। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि डीपीओ विहाड़ी मोहम्मद ईसा खान के खसूसी टास्क पर SHO थाना गड़ामोड़ की बड़ी कार्रवाई। इंसानी स्मगलर गिरोह के रुकन को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम मुमताज अराई यूनान कश्ती हादसे में मुलविस है। मुलजिम को मजीद तफ्तीश के लिए FIA के हवाले कर दिया। खबर शामिल करेंगे बख्शापुर से, जहां थाना गबरू पुलिस का अनोखा कारनामा। 12 साल बच्चे को पुलिस मुकाबला दिखाकर कत्ल कर दिया गया। कत्ल होने वाला मीर खान बंगवार 7वीं जमात का तालिब इल्म था। मजीद जानते हैं सुहारो खान बलोच से। जी सुहारो बताइए। जी बिल्कुल, हम इस टाइम मौजूद हैं बख्शापुर के साथ नवाई गांव शोभा बंगवार में मौजूद हैं, जो कबल एक दिन पुलिस मुकाबले में मीर खान बंगवार को पुलिस ने कत्ल किया था। मजीद उनके वर्षा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। सर क्या कहना है, कल जो पुलिस मुकाबले में मीर खान और सिकंदर बंगवार को पुलिस ने झूठा मुकाबला दिखाकर उसको शहीद कर दिया था, आपका क्या कहना है इस हवाले से? सर असांजो जेको 12 सालनि जो सर जो शागिर्द हुयो, कल साईं वियो SHO साहब जे भाउ खां सर उतां बकरी आधे ॾींहं ते खणी अचे पियो। वापसी ते पुलिस हिन खां का बि ॻाल्हि पुछा न कई, ईअं सिधो गोलियूं हणी करे माना बेगुनाह बेदर्दी सां क़तल करे पियो हुयो। असांजो IG सिंध खे इहो अपील आहे, असां सां इंसाफ़ कयो वञे। जी बिल्कुल, आपने वर्षा की बातें भी सुनी। उनका यही कहना है कि हमारा शागिर्द है और 12 साल उसका जो है वो उम्र है। वो कल SHO कादिर बख्श बंगवार के उताक पे गया है, यहाँ पे आधेरी बकरी लेने के लिए वहाँ पर गया था। वो बकरी भी उनके साथ था। जब वापस वहाँ से आया तो रास्ते में चेकिंग के लिए पुलिस खड़ा था, तो पुलिस ने उसको रोका भी नहीं है, वैसे उसको बरस्ट मार के उनको कत्ल कर दिया। मजीद उन्होंने IG सिंध DIG लालकानू से ये अपील करते हुए कहा कि खुदारा हमारे छोटा 12 साल का बच्चा शागिर्द को बिना जवाब पुलिस ने कत्ल कर दिया। सादिकाबाद भर में दूसरे रोज भी पेस्टिसाइड डीलर्स की मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल रही। डीलर्स ने दुकानों को ताले लगाकर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया। सेक्रेटरी जनरल पेस्टिसाइड मियां फारूक अहमद ने कहा, हुकूमत की तस्हीक अमेज़ रवैये के खिलाफ डीलर्स की हड़ताल गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेगी। महकमा ज़राअत के साथ पुलिस और दीगर इदारों को शामिल करके हमें हिरासा किया जाना हमारा मौशी कत्ल है। बगैर लाइसेंस गैर मयारी अद्वियात बेचने वालों से कोई पूछने वाला नहीं। आगे बढ़ते हुए आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले कि सगी बहन को सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाने वाले मुलजिम की वीडियो वायरल हो गई। वीडियो वायरल होने पर इलाहाबाद पुलिस का एक्शन, मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मजीद जानते हैं अरशद सावल की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, थाना इलाहाबाद पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। खातून को गुज़श्ता शब सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। गुज़श्ता शब वायरल वीडियो में पब्लिक मुकाम पर अमजद नामी मुलजिम अपनी बहन शहनाज को ज़मीन हथियाने के लिए तशद्दुद का निशाना बनाता रहा।
SHO राना सैयद अहमद की सरबराही में पुलिस टीम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम अमजद को गिरफ्तार कर लिया और मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। हाय महंगाई, गुर्बत की सताई अवाम की मुश्किलात में आए रोज़ इजाफा। कमेर शरीफ में मुर्गी का गोश्त अवाम की पहुंच से दूर हो गया। आम बाजारों में ब्रायलर गोश्त 650 रुपये फ़ी किलो फरोख्त होने लगा। आउट ऑफ कंट्रोल महंगाई को कंट्रोल किया जाए, शहरियों का मुतालबा। मजीद जानते हैं नईम अब्बास की इस रिपोर्ट में। गुर्बत की सताई अवाम की मुश्किलात में आए रोज इजाफा होने लगा। कमीर शरीफ में मुर्गी का गोश्त भी गरीब और मुतवसत तबके की पहुंच से बाहर हो गया। आम मार्केट में मुर्गी का गोश्त 650 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। चिकन की कीमतों में होशरबा इजाफा होने से शहरी चीख उठे। इस वक्त मुर्गी का गोश्त इंतहाई महंगा हो चुका है कि गरीब आदमी खरीद नहीं सकता, जो कि मुर्गी का गोश्त 6 सेंचुरियाँ क्रॉस कर चुका है। इस वक्त 640-50 पर वो फरोख्त हो रहा है। हम हुकूमत वक्त से पुरजोर अपील करते हैं कि लिहाजा मुर्गी का गोश्त तो कम किया जाए कि गरीब आदमी खरीद सके। चिकन का जो रेट है तकरीबन 630 रुपए से भी क्रॉस कर गया। ये जो आदमी 500-600 दिहाड़ी कमाने वाला है वो चिकन खरीदेगा या और कुछ चीज़ें खरीदेगा। लिहाजा हमारी अपील है काम बाला से कि इसकी कोई नोटिस लिया जाए। मुर्गी का गोश्त 640 रुपए किलो इस वक्त मिल रहा है, तो हुकूमत वक्त से अपील है कि गरीबों के बच्चों की तरफ देखें, सब गरीबों की तरफ देखें और जो ये बढ़ते हुए रेट हैं मुर्गी के चीज़ों के, इनके बराए मेहरबानी कंट्रोल बीफ और मटन तो पहले ही पहुंच से दूर थे, मगर अब चिकन भी आम आदमी की दस्तरस में नहीं रहा। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि आउट ऑफ कंट्रोल महंगाई को कंट्रोल किया जाए, ताकि ये जो सोहनी धरती है इसके पीछे वर्दी है। शहदाद कोर्ट में पाक फौज के हक में रैली निकाली गई। पाकिस्तान पेट्रियोटिक मूवमेंट के कारकुनों ने बैनर्स उठा रखे थे। फजा पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। रैली साबिर खोकर इख्तियार बरूही की निगरानी मक्का राइस मिल से लेकर शहदाद कोर्ट प्रेस क्लब तक निकाली गई। शुरका ने कहा कि हम हर वक्त पाक फौज के शाना बिशाना खड़े हैं। तरिंडा मोहम्मद पनाह में किसान फसल कमात की देखभाल में मसरूफ दिखाई देने लगे। किसान खाद और स्प्रे करने में मसरूफ अमल है। मजीद जानेंगे गुलाम अली की रिपोर्ट में। तरिंडा मोहम्मद पनाह और गिरदन नवाह के किसान काश्त की गई फसल कमात की देखभाल में मसरूफ हो गए। कमात की फसल को पानी लगाने, खाद स्प्रे देने लगे ताकि उनकी मेहनत रंग लाए, औसत पैदावार में इजाफा हो, जिससे वो अच्छा खासा मुनाफा हासिल कर सकें। काश्तकारी के मुताल्लिक किसानों ने बताया कि 20 विगेसी मेरा कमांड है। सोलर लई खड़े से खाद तेल जरा पहुंच नहीं सकता, असां जरा डीजल महंगे, खाद महंगे, स्प्रे महंगे ते कमांड जरा मुस्ताजरी जरा 70,000 रुपया मुस्ताजरा भरेंदे से ते असां जरा पहुंच नहीं सकते। जमीनें अपनी नहीं, 70,000 रुपये फी एकड़ ठेके के हिसाब से ले रखी हैं। कमांड की फसल काश्त की है। अगर हुकूमत वक्त खाद स्प्रे सस्ती करे और किसानों की हौसला अफजाई करे तो फसल की काश्त और औसत में बेहतरी आ सकती है। डीजल महंगा होने के सबब घरों में पाले गए माल मवेशी बेचकर ट्यूबवेलों को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किया है ताकि महंगे दामों तेल खरीदने से बच सकें और अपनी। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर शकीब सरवर ने देही मरकज सेहत तरिंडा मोहम्मद पनाह का अचानक दौरा किया। अद्वियात का स्टॉक, अमले की हाजिरी और दीगर सहूलियात का तफसीली जायजा लिया और मरीजों से अमले के रवैये बारे दरियाफ्त किया। असिस्टेंट कमिश्नर शकीब सरवर ने मरकज सेहत में कायम खिदमत काउंटर की बंदिश बरहमी का इजहार किया। खिदमत काउंटर को फिलफौर बहाल करने की हिदायत जारी कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि अस्पताल में सफाई सुथराई की सूरत हाल को बेहतर और स्टाफ हाजिरी को 100% यकीनी बनाया जाए। तांदियावाला के पोस्ट ऑफिस चौक में कचरा कुंडी के ढेर म्यूनसिपल इंतजामिया की गफलत का मुंह बोलता सबूत है। पोस्ट ऑफिस इंतजामिया और शहरी म्यूनसिपल कमेटी की कारकर्दगी पर बरस पड़े। पोस्ट मास्टर का कहना है कि डाकखाना चौक हर लिहाज से अहम होने के नाते गंदगी की अमाज का बन गया है। सेंट्री वर्कर्स पूरे बाजार का कचरा इस चौक में फेंक देते हैं। डाकखाना चौक के दुकानदार भी कचरा निकालकर चौक के वस्त में फेंक देते हैं। कचरा पॉइंट बनने से ताफून और बदबू से फजा आलूदा रहती है। डीसी फैसलाबाद फौरी नोटिस लें। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।